Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of IT. Students, in my previous video, I have teach you about the factors affecting communication. I have discussed you how many factors affected the communication and how can we get rid of this. In this video, I am going to teach you about the principles of effective communication. Students, what are the principles of effective communication? Students, we know that for every work, behind every work, there are some reason or objective. So, behind every communication, there will be an objective upon which any communication is took place. In this video, I am going to discussing with you about the such guidelines that are followed in performing or completing a task or a job so as to attain predetermined objective. इस वीडियो में आपको ऐसे गाइडलाइंस के बारे में बताया जाएगा जो किसी काम को करने के लिए कंप्लीट करने के लिए फॉलो करना होता है जिससे हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं. फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन the principle our guideline which are often referred as 7 Cs should be followed. You can also see in the picture there are 7 Cs that we followed during communication. These are it is consciousness. This is the principle of consciousness. Second, principle of clarity. Third, correctness means principle of correctness. Fourth, principle of concentrateness. Principle of completeness, principle of courteousness, and principle of coherence. These are the 7 principles that we should follow before any communication. Let us discuss about these principles. What are these and why are they important? Students, our first principle is principle of clarity. Students, we know we should communicate in such a way that the meaning or the content what we speak or what we express must be clear to receiver. The idea or message to be communicated should be correctly planned and expressed in a logical way. जो भी कम्युनिकेशन हमको करना चाहिए वो बहुत ही करेक्ट तरीके से प्लान करना चाहिए, उसकी योजना बहुत ही सही तरीके से होनी चाहिए और एक लॉजिकल वे में हमको अपने मैसेज को सही तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए. द कम्युनिकेटर शुड मेक श्योर दैट द आइडिया फ्लो स्मूथली फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेटर की होती है. दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटर दैट द आइडिया अबाउट विच ऑन द टॉपिक about which we are communicating are smoothly flowing from starting of the communication to the ending of the communication. Means कम्युनिकेशन से शुरू से लेकर के कम्युनिकेशन के शुरू से लेकर के लास्ट तक हमको आइडिया को स्मूथली सही तरीके से हमको फ्लो करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए. It should be worded in such a way
यानी और हमको इस तरह से अपने वर्ड्स का यूज करना चाहिए दैट इवन द मोस्ट अनइन्फॉर्म्ड पर्सन कुड रियली अंडरस्टैंड इट, कि जो सबसे कम इन्फॉर्म्ड यानी जानकार व्यक्ति है वो भी हमारे आइडिया को ईजली समझ सके, ईजली उसको समझ करके अपने हिसाब से वो रिस्पॉन्स दे पाए या फीडबैक दे पाए। देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी इन द मैसेज, यानी मैसेज में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। मीन्स मैसेज में या आपके इन्फॉर्मेशन में कोई भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। बहुत ही क्लियर मैसेज आपको डिलीवर करना चाहिए ताकि रिसीवर को सही तरीके से मैसेज क्लियर हो पाए, तभी जा कर के प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी यानी क्लैरिटी का जो प्रिंसिपल होता है वो पूर्ण होता है या कंप्लीट होता है। The communicator must be very clear about the features of the idea in his mind, about the purpose for which it is to be communicated. कम्युनिकेटर के माइंड में ये पहले से क्लियर होना चाहिए कि जिस पर्पज पे, जिस टॉपिक पे बात किया जा रहा है, जिस पर्पज पे कम्युनिकेशन हो रही है, उसके फीचर्स उसको अच्छी तरह पता हो, वेरी क्लियर, वेरी बहुत ही स्पष्ट हो, सो दैट ही कैन यूज़ इट ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, ताकि वो कम्युनिकेशन के दौरान उन फीचर्स को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए। A clear message will bring to mind the same response from the other party. If a person or receiver get clear message from the sender, then he will able to deliver a clear response from himself or herself also. So clear message bring forward to be mind the same person, same response from the other party. अगर हम लोग एक क्लियर मैसेज देते हैं तो सामने वाले को भी क्लियर समझ आएगा और वो अपने प्रयास करते हुए पूरी तरह से सही मैसेज वो डिलीवर करेगा। द कम्युनिकेटर मस्ट बी क्लियर अबाउट द सुटेबल सेलेक्शन एंड यूजेज ऑफ मीडियम थ्रू विच द मैसेज विल बी कम्युनिकेटेड। Communicator must be clear about. It is very important that communicator who start the communication is very clear about the suitable selection and uses of medium. Means कि कम्युनिकेशन किस मीडियम में करना है, किस लैंग्वेज में करना है, इस बात की जानकारी, इस बात को वो पहले से तय कर लेना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐन मौके पे आप अपने मीडियम को चेंज कर लें और सामने वाला उसको समझ ना पाए। द मैसेज मस्ट बी केयरफुली इनकोडेड एंड ट्रांसमिट वेल। मैसेज भी सही तरीके से इनकोड होना चाहिए एंड ट्रांसमिटेड वेल, और सही तरीके से पूरी तरह से 100% ट्रांसमिट होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट विल ब्रिंग अबाउट द क्लैरिटी इन द कम्युनिकेशन। इफ subject are clear during the communication about the communication, it will bring clarity in the communication। तो उससे हम लोग के कम्युनिकेशन में बहुत ही स्पष्टता आती है, क्लैरिटी आती है, अगर पता हो पहले से कि किस मुद्दे पे या किस इशू पे कम्युनिकेशन होने वाला है। डू नॉट जम्प फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड देन बैक टू द फर्स्ट एस्पेक्ट। कभी भी हमको एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, पैराग्राफ के या किसी भी कम्युनिकेशन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप नहीं करना चाहिए एंड देन बैक टू द फर्स्ट एस्पेक्ट, फिर शुरू में आ जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। दिस विल लीड टू कन्फ्यूजन फॉर यू एज वेल एज द रीडर। इससे आप भी कंफ्यूज होते हैं और जो रीडर होता है, दोनों लोग कंफ्यूज होती हैं, यानी दोनों पार्टियां इससे कंफ्यूज हो सकती हैं अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जंप कर जाते हैं तो। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। आवर सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस।
What is the principle of completeness? Students, it is one of the most essential factor for effective communication. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी प्रिंसिपल होता है। किसी भी कम्युनिकेशन में कंप्लीटनेस या पूर्णता बहुत ही ज़रूरी होती है। अ मैसेज मस्ट बी ऑर्गेनाइज प्रॉपरली। मैसेज जो हो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर करते हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज हो। मैसेज मस्ट बी ऑर्गेनाइज प्रॉपरली सो दैट इट मस्ट इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट आइडियल्स एंड डिटेल्स, जिसमें सारे आइडियल्स और डिटेल बहुत ही सही तरीके से इंक्लूड हों, शामिल हों। द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज मस्ट बी केयरफुली चेक्ड एंड वेरीफाई। मैसेज का जो भी कंटेंट हो उसको हमको बहुत अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए और वेरीफाई करने के बाद जब हमको ये लगे कि ये पूर्णतः त्रुटि रहित है, देन in order such that there is no omission of the important details, और हमको जब ये पता चल जाए कि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें से ओमिशन मीन्स मिस नहीं है, उसके बाद हमको अपने मैसेज को डिलीवर करना चाहिए। मीन्स जब भी हम लोग कम्युनिकेट करें तो जो भी मैसेज हम क्रिएट करते हैं, द मैसेज दैट वी क्रिएटेड मस्ट प्रॉपरली चेक्ड एंड वी मेक श्योर दैट no any point will be deleted or missed during the communication. All the parts of the message must be grouped and brought together. यानी मैसेज के सारे पार्ट एक सही तरीके से ग्रुप्ड हों और एक दूसरे एकत्रित होकर के हमको लॉजिकल सीक्वेंस में मीनिंगफुल यूनिट के साथ एक्सप्रेस करना चाहिए। मीन्स कम्युनिकेशन में हमको सभी फैक्ट्स को, सभी तथ्यों को, सभी एग्जाम्पल्स को, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हों सबको हमको सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में एक्सप्रेस करना चाहिए। कम्युनिकेशन बिकम इनकम्प्लीट इफ़ पार्शियल इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड। अगर हम कम्युनिकेशन में केवल पार्शियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पार्शियल इन्फॉर्मेशन मीन्स आधी अधूरी जानकारी अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो कम्युनिकेशन क्या होता है, मीनिंगफुल नहीं होता, बिकम इनकम्प्लीट। तो वो कम्युनिकेशन आपका इनकम्प्लीट हो जाता है अगर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं करते हैं। कम्युनिकेशन में जो भी फैक्ट्स हैं या जो भी लॉजिक हैं हम लोग पूरी तरह से 100% यूज़ नहीं करते हैं तो वो पार्शियल या इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन हो जाता है। The efforts of communicator can be more fruitful and effective when the receiver easily react to sender's message. The efforts of communicator can be more fruitful and effective. कम्युनिकेटर का एफर्ट और भी लाभदायक और प्रभावी हो जाता है जब रिसीवर सेंडर को ईज़िली रिएक्ट करता है, मीन्स ईज़िली अपना रिस्पॉन्स देता है, तो हम लोग और भी प्रभावी तरीके से उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। इनकम्प्लीट मैसेज में फॉर्म डाउट्स इन रिसीवर्स माइंड। अगर आप इनकम्प्लीट मैसेज देते हैं तो वो रिसीवर के माइंड में एक डाउट क्रिएट करता है। जैसे क्लास में अगर आप टीचर पढ़ा रहे हैं और टीचर पूरी इन्फॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं समझा पाता है या बता पाता है, तो वो बातें स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट क्रिएट करती हैं कि कहीं सर को या टीचर को आधी अधूरी जानकारी तो नहीं है। सो कंप्लीटनेस इन राइटिंग इज अटेंड थ्रू प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइडिया फ्लोइंग इनटू ईच अदर एंड प्रोग्रेसिंग इनटू कंक्लूजन। सो किसी भी राइटिंग की कंप्लीटनेस तभी पूर्ण होती है थ्रू प्रॉपर अरेंजमेंट
ऑफ आइडियाज़, यानी अरेंजमेंट आइडियाज़ को सही तरीके से अरेंज करने के बाद जब हम उसको एक सही तरीके से प्रोग्रेस करते हुए हम उसको ख़त्म करते हैं, तब माना जाता है कि हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस? स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन मस्ट बी एक्यूरेट इन टोन एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, स्पेलिंग, फॉर्मेट, ग्रामर, कंटेंट, इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, करेक्टनेस मीन्स होता है सही या उचित। द कम्युनिकेशन मस्ट बी एक्यूरेट इन टोन एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वॉइस, टोन और एक्सप्रेशन में करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। स्पेलिंग्स मस्ट बी करेक्ट, फॉर्मेट, ग्रामर, कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा शुड बी provided or released will be accurate or 100% correct। यानी हमको कम्युनिकेशन में जो भी चीज़ें यूज़ करें, जिसका फॉर्मेट जो हो, लैंग्वेज जो हो, ग्रामर जो हो, वो इस तरह से यूज़ करें, बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करें, ताकि रीडर जो हो या फिर रिसीवर जो हो वो उस मैसेज को सही तरीके से इंटरप्रिएट कर सके। देयर शुड नॉट बी एनी रॉन्ग स्टेटमेंट इन द मैसेज। मैसेज में हमको कोई भी गलत जानकारी नहीं यूज करनी चाहिए। कम्युनिकेशन के दौरान हमको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहिए। एफर्ट मस्ट बी मेड टू अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स एंड एरर्स इन स्पेलिंग, पंचुएशन एट्सेट्रा। एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू अवॉइड, यानी हमको कोशिश करके ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर्स या पंचुएशन मार्क का यूज सही तरीके से करना चाहिए। यानी हमको चेक कर लेना चाहिए कि सारी चीज़ें सही हैं अथवा नहीं, और नहीं हैं तो उसको सही करने के बाद कम्युनिकेशन में रिप्रेजेंट करना चाहिए या एक्सप्रेस करना चाहिए। द रीडर में लूज कॉन्फिडेंट इन द राइटर्स ड्यू टू एन इनकरेक्टली रिटन डॉक्यूमेंट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं मिस्टेक है तो रीडर जो होगा वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा, उसको आपकी लिखावट या ग्रामर या कंटेंट सही तरीके से समझ नहीं आएंगे। इनकरेक्टली रिटन डॉक्यूमेंट इन द सेम वे इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड एरर ऑफ द स्पीकर लोअर द लिसनर कॉन्फिडेंस इन हिम एंड मे आल्सो अफेक्ट हिज इमेज एंड रिलायबिलिटी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का अगर हम लोग कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं और एरर्स का यूज़ करते हैं तो रिसीवर जो होगा जब वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं किया है। he did not use correct information or logic, and then he will create an negative इम्प्रेशन अबाउट यू। तो वो आपके बारे में एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा उसके माइंड में। इफ़ द रिसीवर फाइंड वन एरर इन द कम्युनिकेशन, अगर रिसीवर को एक भी एरर मिलता है कम्युनिकेशन में, ही आर सी मे सस्पेक्ट दैट देयर कैन बी मोर एरर्स, तो उसको ये लगेगा कि आगे इस राइटिंग में या कम्युनिकेशन में और भी एरर हो सकता है। कहा जाता है जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, अगर पहला इम्प्रेशन जो होता है वही हमारा आखिरी इम्प्रेशन भी होता है। तो ऐसे ही अगर रीडर को शुरू में ही आपके कम्युनिकेशन में एरर मालूम चला तो वो क्या करेगा, उसका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा। ही में आल्सो क्रिएट अ नेगेटिव व्यू अबाउट यू। Therefore, he or she may start looking for the other mistake automatically, तो वो ऑटोमेटिक आपके और एरर को देखने लगेगा, चेक करने लगेगा, जो आपके लिए उसके दिमाग में एक निगेटिव इम्प्रेशन होगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट आल्सो बी करेक्ट। मीन्स हम लोग जिस सब्जेक्ट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही हमको
रिलीज़ करना चाहिए या एक्सप्रेस करना चाहिए। द मैनर इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड मस्ट बी कम्प्लीटली करेक्ट। और जिस तरीके से हम लोग मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं वो भी बिल्कुल completely करेक्ट होना चाहिए। एक्यूरेसी इन राइटिंग कैन बी अचीव्ड बाय प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग द कंटेंट। किसी भी राइटिंग में एक्यूरेसी जो होती है वो प्रूफ रीडिंग करके और एडिटिंग करके कंटेंट को प्राप्त की जा सकती है। ओवर राइटिंग, स्ट्राइक ओवर, स्पेलिंग रॉन्ग स्पेलिंग, रॉन्ग ग्रामर, पुअर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा मे डिस्ट्रैक्ट द रीडर एंड may lead to misunderstanding। ओवर राइटिंग, स्ट्राइक ओवर्स, रॉन्ग स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें, रॉन्ग ग्रामर या पुअर सेंटेंस में डिस्ट्रैक्ट द रीडर को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं एंड मे लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, और मिसअंडरस्टैंडिंग को की वजह बन जाती हैं। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेंडर शुड वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर ट्रांसमिटिंग इट टू द रिसीवर। तो ये कम्युनिकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैसेज को रिसीव करने के पहले, ट्रांसमिट करने के पहले उसकी करेक्टनेस को ज़रूर चेक किया जाए। बिफोर एक्सेप्टिंग द इंफॉर्मेशन फॉर इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग द रिसीवर शुड क्लैरिफाई हिज हर डाउट रिगार्डिंग द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द मैसेज। और एक्सेप्टिंग मैसेज को एक्सेप्ट करने के पहले रिसीवर को भी चाहिए कि वो क्लैरिफाई कर ले अपने डाउट रिगार्डिंग द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द मैसेज, कि मैसेज जो उसने रिसीव किया है वो करेक्ट है और एक्यूरेट है या नहीं, जिससे कम्युनिकेशन में कोई भी कन्फ्यूज़न न क्रिएट हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम माय टुडेज वीडियो। In my next video, we will study more about the principle of effective communication. Until then, have a great day.